Good evening students. In this video we will discuss the 15 questions from time and work. Firstly, I will discuss the questions that are unattempted during the test. So 4 questions are there. I will start from the first one. A garrison has a provision for 30 days. After few days 1 by 5 of the people left and it was found that provision would last for as long as before. After how many days the people left? So this is a question from time and work concept, and the question is about the provision for 30 days. Okay, so let's suppose the persons are m. There are m number of persons and for 30 days the provision is there, so m into 30. This is the work done. Let's suppose this work done will be equal to, for x days, let's suppose after few days, so let's suppose x days are there, so for x days 30 persons are there. For x days m persons are there. Okay, m persons are there for x days, and then he is saying the provision would last as long as before. So that means after when 1 by 5 of people left, the provision would last for how many days as before? That means 30. This is the confusing part, and I hope this type of statement is not asked. Hindi translation of this question is not available. That's why I just get the hint, and I am just telling the solution part. So he says that after 1 by 5 people left, that means when 1 by 5 people left, so total people are m, and 1 by 5 of m are left. So how many are remaining? 4 by 5 will be remaining. I hope it is clear. Total number of people m, 1 by 5 left, then 4 by 5 will be left. So this will be equal to, so 4 by 5 are left. So here I will write 4 by 5 people, 4 by 5 m will be left, and they will be lasting for 30 days. This is the confusion part actually. This is the confusion part. So 5 into 30, this will become 6. So 6 into 4, 24 m. So 30 m, m 30 लिख सकते हैं इसको, m 30 equal to xm. And if you know about the time and work concept, then you can only understand this type of question. Otherwise you have to watch the earlier video. So this is 24 m. So x will be equal to, from this to by rearranging the equation, xm will be equal to 26m, xm will be equal to 6m, and m and m will cancel out. So after m and m will cancel out, x comes out to be 6. So this 6 will be the right answer. So after 6 days, 1 by 5 people left. So after 6 days 1 by 5 people left. So this is the question that is unattempted. So I hope it is clear. The confusion part was that after lefting this, after the leaving of this 1 by 5, the provision would last for 30 days. This is the confusion part, and this question was unattempted during the test. So x is equal to 6. Then we have the second question. Okay, let's check. This one is over. Question number 7. In the question number 7, what happened? I was calculating the salary of clerk. My method calculating the salary of PO actually, and I was getting the wrong answer because salary of PO will be different. So that was the you can say that was the mistake that I was doing there. So let's see the question how to solve. So this is clerk, this is PO, and this is manager. So I hope it is clear. It is completing the work in 15 days, it is completing the work in 12 days, and manager is completing the work in 10 days. So we have to basically take the LCM. हम LCM लेके solve करते हैं. LCM is 60 and then 15 into 4. So efficiency of clerk is 4
आई होप यू नो दिस टर्म इज एफिशिएंसी, जो टर्म मल्टीप्लाई होती है दैट इज एफिशिएंसी. सो एफिशिएंसी ऑफ पीओ इज 5 and efficiency of manager is 6. But students read the statement. According to the statement, PO worked all the day. That means PO worked for, PO की efficiency कितनी है 5. PO ने पूरा सारा दिन काम किया, PO की efficiency 5. But clerk and manager each completed him for half of the time. That means उसने हाफ एफिशिएंसी की, मतलब पूरे दिन में वो 4 काम करता है बट उसने हाफ डे काम किया. दैट मीन्स एफिशिएंसी इज 2, क्लर्क की एफिशिएंसी 2 एंड द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर इज 3. तो ये एफिशिएंसी 2 एंड 3 क्यों ली है? बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर हाफ ऑफ द टाइम एज पीओ. पीओ पूरा काम कर रहा है, क्लर्क एंड मैनेजर हाफ टाइम दे रहे हैं. सो अप टू दिस पार्ट आई थिंक क्लियर होना चाहिए. 2:5:3 दिस विल बी द रेशो ऑफ देयर एफिशिएंसी. और सैलरी किसके अकॉर्डिंग होती है? सैलरी इज अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी. और मैं कहाँ पे गलती कर रहा था? मैं यहाँ पे गलती कर रहा था. आई वाज कैलकुलेटिंग द सैलरी ऑफ पीओ, और पीओ की मेरे पास सैलरी आ रही थी 25,000, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन स्किप हो गया. ठीक है. सो दैट वाज द मिस्टेक देयर. पीओ की सैलरी में 25,000 निकाल रहा था. सैलरी ठीक थी बट प्रॉब्लम ये थी पीओ की सैलरी पूछी नहीं थी. सो आई हैव टू फाइंड द सैलरी ऑफ क्लर्क. सो क्लर्क की सैलरी कैसे निकालेंगे? टोटल पार्ट, क्लर्क के पास कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स आर विद क्लर्क. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 5 + 3 + 2 10 एंड सैलरी इज, टोटल अमाउंट इज 50,000. सो 50,000 यहाँ पे लिखेंगे. 50,000 के 2 पार्ट्स निकालेंगे. ठीक है. 50 आउट ऑफ 10 पार्ट्स, 10 पार्ट्स इक्वल टू 50,000. तो यहाँ से कैंसिल आउट करके 0 से 0 कैंसिल आउट. 10,000 विल बी द राइट आंसर. सो 10,000 इज द सैलरी. 10,000 इज द सैलरी ऑफ दैट क्लर्क. उस क्लर्क की सैलरी क्या होगी? 10,000 होगी फ्रॉम दैट 50,000. 50,000 में से 10,000 सैलरी क्लर्क की. मैंने आपको बताया 25,000 किसकी थी? 25,000 मेरे पास आई थी पीओ की. 25,000 पीओ की और 10,000 क्लर्क की. तो बाकी बचे 3 पार्ट्स, और 3 पार्ट्स अगर आप कैलकुलेट करोगे देन 15,000 सैलरी आएगी मैनेजर की. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. दूसरा क्वेश्चन ये था. पहले क्वेश्चन में स्टेटमेंट में थोड़े डाउट लगा, लेकिन स्टेटमेंट सही थी बट कंफ्यूजिंग करने वाली थी. यहाँ पे गलती क्या हुई थी? यहाँ पे गलती हुई थी कि मैंने जो सैलरी कैलकुलेट की थी वो मैंने गलती से जल्दी में पीओ की निकाल दी थी, और पीओ का कोई ऑप्शन मैच नहीं था हो रहा. अगर कोई ऑप्शन मैच होता तो मेरा आंसर ही गलत हो जाता. मैं वो मार्क कर देता अगर 25,000 होती. तो ये ऑप्शन मैच नहीं हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ा. देन लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 जो है दैट वो स्किप किया गया. दिस क्वेश्चन वाज ट्रिकी वन. ये क्वेश्चन अच्छा था, ट्रिकी वन, और थोड़ा सा टाइम कम हुआ. बाकी प्रैक्टिस की भी बात है, काफ़ी देर के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो पी क्यू आर स्टार्टेड द वर्क एंड आर लेफ्ट आफ्टर 4 days व्हेन 46% ऑफ वर्क इज कम्प्लीटेड. तो पता है ट्रिकी क्वेश्चन है, देखना. पी प्लस क्यू प्लस आर, P plus Q plus R, these are worked, they worked for 4 days. तो इनका 4 दिन का काम कितना हो गया? 46%. ध्यान से समझना बच्चे, कंसेप्ट बहुत अच्छा था और काफ़ी प्रैक्टिस के बाद मतलब कंसेप्ट बनते हैं, और अभी प्रैक्टिस दोबारा से स्टार्ट हुई है. सो 46% वर्क इज कम्प्लीटेड बाय PQR इन द फर्स्ट 4 days. एंड आफ्टर दैट आर लेफ्ट, तो आर ने लेफ्ट कर दिया, बाकी कौन बचा? पी एंड क्यू. सो पी एंड क्यू आर लेफ्ट नाउ. अब पी और क्यू ने कितना काम किया? इन द 6 days द रेस्ट ऑफ द वर्क इज कम्प्लीटेड. दैट मीन्स इन द 6 days दे कम्प्लीटेड 54% ऑफ द वर्क. बाकी कितना बचेगा बच्चे? 54% ऑफ द वर्क. अब जहाँ पे ध्यान से समझना, पी एंड क्यू कम्प्लीटेड 54% in 6 days. That means in 1 day P and Q will complete. In 1 day P and Q will complete 9%. चेक करो एक बार. इन 1 day, यहाँ पे अगर 6 days में 54% कर रहे हैं तो 1 day में कितना करेंगे? 9%.
अब चाहे देखो, नाउ यू हैव टू चेक पी एंड क्यू यहाँ पे भी है एंड पी एंड क्यू आर वर्किंग फॉर 4 डेज। तो एक दिन में पी के एंड क्यू कितना कर रहे हैं 9%। दैट मीन्स 4 डेज में कितना कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे टोटल वर्क कितना है 46%। अब इनमें इस पूरे वर्क में से 46% में से पी एंड क्यू का चेक करते हैं। पी एंड क्यू 4 डेज में कितना कर देंगे, पी एंड क्यू विल कंप्लीट 36%। 9% एक दिन में कर रहे हैं तो 36% कंप्लीट कर देंगे। दैट मीन्स जो बाकी का वर्क है वो आर ने कंप्लीट किया, लेकिन कितने दिन में, 4 डेज में। बच्चे ये चीज़ ध्यान से समझो यहाँ पे, आई विल रिपीट इट अगेन। पहले देखो पी क्यू आर डेली, सॉरी पी क्यू आर तीनों काम करते हैं 4 डेज में 46%, पी क्यू 6 डेज में काम करते हैं 54%, जो रिमेनिंग है 6 डेज में 54 करते हैं। दैट मीन्स पी एंड क्यू सिंगल डे में, फॉर अ सिंगल डे कितना करेंगे 9%। अब 9% ये कर रहे हैं। अब देखो पी एंड क्यू यहाँ पे भी है, पी एंड क्यू ने 4 दिन काम किया है तो कितना काम कर दिया पी एंड क्यू ने मिलके 36%। और बाकी जो 4 डेज में आर ने किया वो कितना बचा, वो भी हम देखेंगे। 36% प्लस 4 आर इज इक्वल टू 46। यहाँ तक बच्चे नोट कर लो। आफ्टर दैट वी डिस्कस, आफ्टर दैट 4 डेज, इन 4 डेज आर इज डूइंग 46 माइनस 36, दैट मीन्स 10%। तो 4 डेज में आर ने कितना काम किया 10%। अगर आर को ये काम पूरा कंप्लीट करना हो, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, इन हाउ मैनी डेज आर अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, तो अगर आर ने अकेले ने काम पूरा करना हो तो 100% काम पूरा करना है। दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 40 डेज में आर कितना काम पूरा करेगा, आर विल कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। सो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विद 10 एंड यू विल गेट 100%। यस, दिस क्वेश्चन वाज इजी, ये क्वेश्चन किया जा सकता था। ठीक है, ट्रिक चाहिए इसके लिए तो ये क्वेश्चन किया जा सकता था। इट्स आंसर वाज 40 डेज। स्टूडेंट्स, द टेस्ट वाज 15 मिनट्स, 15 क्वेश्चन एंड 15 मार्क्स। तो कई बार क्वेश्चन स्किप करने पड़ते हैं, स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूज कर देती है, बट दिस क्वेश्चन वाज ऑफ ओके लेवल। 40 डेज विल बी आंसर, so this is okay level question and we can expect such type of question in the railway exams. Okay, so let's move to the next question. I think it is clear, you can note down. Next question is on screen. The work done by, this question was skipped, थोड़ा टाइम कम था लास्ट में, so this question was again skipped. This work done by x minus 1 man in x minus 1 days is to the work done by x plus 2 minus x minus 2 days is ratio 16:15, then the work value of x। तो बच्चे इजी क्वेश्चन था, थोड़ी जल्दबाजी में नहीं हो पाया। सो x माइनस 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं। हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, हाउ वी फाइंड द वर्क, वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, मैन इंटू डेज, वर्क डन इज इक्वल टू मैन इंटू डेज, बेसिकली मैन इंटू डेज इंटू आवर्स भी कर देते हैं, बट अगर आवर्स गिवन नहीं होते देन वी कैन जस्ट टेक मैन इंटू डेज। So here we will take x minus 1, x plus okay, x minus 1, this is the man, these are the number of mans, and x plus 1 is days. So x minus 1 into x plus 1 by x plus 2, x plus 2 into x minus 2 into x minus 2. So this ratio is equal to 16:15. After this you can solve it, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। दिस इज 16/15। तो आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व इट, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 and this is equal to 16/15। ठीक है, आफ्टर दिस यू हैव टू सॉल्व इट। 15x स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 16 4 द 64। सो 15x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 15
this is equal to 16 x square minus 64. So after this you can check x square comes out to be 64 minus 15. So x square comes out to be 49, and you have to take the under root. So x is equal to 7 आपके पास आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस 7. यू हैव टू इग्नोर द नेगेटिव वैल्यू. सो 7 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन भी किया जा सकता था. ठीक है. सो वन क्वेश्चन वाज, यू कैन से फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वाज थोड़ा स्टेटमेंट में लग रहा डाउट. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ओके एंड इजी, मॉडरेट लेवल. ओके. सो नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चंस that I have attempted. Okay, these are the skipped questions, so you can note down the solution. Now we are moving to the attempted questions. Okay, so one question was incorrect. Why it was incorrect? He was asking about the number of days time taken by A to finish the work. I marked 42. Method was right, but just silly mistake was there. So let's discuss this question. So A is twice as good workman as B. That means efficiency of A is twice than the B. So A's efficiency is 2, B's efficiency is 1, and they can complete the work in 40 days. Both they can finish a work of piece in 14 days. So that means working together. So 3 is the efficiency when they work together 14 days. So work is 3 into 14. Work done is equal to 42. He was asking about the time taken by A alone to finish the work. So time taken by A will be 42. Work done by the efficiency of A. So it is 2 into 42. यहाँ पे आंसर आएगा 21 days. I have calculated the answer, but यहाँ पे आंसर क्या हुआ था, गलती से मतलब थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई. Method was right, but 21 will be the right answer. By mistake I have marked 42. So with this question, I think 5 questions are over. That are 4 unattempted and 1 wrong attempted. ठीक है, 1 wrong answered. So now we are going to start the questions that we have done right. So correct questions are there, and question number 1 is on screen, and I will tell you a trick. A can complete 1/4 of the work. So if A is completing 1/4 work in 10 days, 1/4 work in 10 days, so total work is 1. बेसिकली हम टोटल वर्क को मानते हैं यूनिट और 100%. सो टोटल वर्क इज 1. सो A कैन कंप्लीट द वर्क 1/4 ऑफ वर्क इन 10 days. कंप्लीट वर्क इन 40 days. तो A कितना टाइम लगाएगा, 40 days. फॉर B is completing 40% of the work in 50 days. So 40% in 15 days, 40 work in 15 days. So 100 work we have to find the 100%, है ना. 100% work is equal to 15 by 40 into 100. So this is the days required by B. So we will complete the 100% of the work. This is 100%, and 100% is what? 100% is equal to unit. So इस केस में unit work done, and in this case 100% work done. These are the same things. So 100% work is completed in 3/8 days. 15 by 3/8. So this is 37 days. Okay, 37.5 days. So B will take 37.5 days. Students, you can note down up to this point. Then I will discuss the time required by C and D. So B will take 37.5 days, A will take 40 days, B will take 37.5 days. After this you can see C will complete 1/3 of work in 13 days. C will complete the work. C is completing 1/3 of work
So 1/3 of work. So 1/3 work he is completing, C is completing in 13 days. So in how many days he will complete the full work? So for completing the work, full work, he need 39 days. 3 is the 39. So these are the days for C, and D complete 1/6 of the work in 7 days. 1/6 in 7 days. So he will complete the work in, for completing the whole work he will take 7 6 the 42 days. So I think up to this point it is clear, and now see what he is asking. He is asking who will be able to complete the work fastest. तो सबसे जल्दी कौन करेगा? बी का आंसर राइट था. बी वाज 37.5. तो 37.5 days B will take. So we have done 5 questions in 20 minutes with explanation. 37.5 B is the right answer. Okay. So now we are moving to the next question. Question number 2 is on screen. And A and B undertook a work for 4500. So 4500 रुपीज़ के लिए उन्होंने एक काम ले लिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट. A alone can do it in 8 days, B alone can do it 12 days. So that means A alone can do it in 8 days, B alone can do it in 12 days with the assistant of C. मतलब C की हेल्प से. दैट मीन्स A प्लस बी प्लस सी. जब तीनों ने काम किया, A प्लस बी प्लस सी. सो विद द हेल्प ऑफ C दे फिनिश द वर्क इन 4 days. तो उन्होंने 4 days में फिनिश कर दिया. द शेयर ऑफ C इन द मनी. तो C का शेयर पता करना है. सो वी हैव टू टेक द LCM ऑफ इट. सो LCM मीन्स 8 12 and 4. LCM is 24. So 24 is the LCM, and efficiency is 8 3 is the 24. 3 is the efficiency of A, 2 is the efficiency of B, and 4 6 is the 24. So 6 is the combined efficiency of A, B and C. So I hope it is clear. From here you can see 3 is the efficiency of A. So A plus B, 3 and 2 is 5. So 6 minus 5 is the efficiency of C. So efficiency of C is 1. सो देन सी का शेयर बच्चे पता करना है, यहाँ तक नोट कर लो. सो एफिशिएंसी इज 3 2 1. तो 3 एफिशिएंसी ए, 2 इज द एफिशिएंसी ऑफ बी एंड 1 इज द एफिशिएंसी ऑफ सी. सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 6. सो 1/6 into total amount, that is 4500. So this is the total amount, and 1 part of this amount is given to C from the 6 parts. So after cancellation you can check 750 is the right answer for question number 2. So question number 2 is clear. You can note down the solution, and if you have any doubts then you can drop a message or you can ask. Now we are moving to question number 3. So question number 3 is on screen, and A, B and C do a piece of work in separately 16, 32 and 48 days. They started the work together, but B left off 8 days, C 6 days before the completion of work. In what time the work is finished? So easy one. Let's see how to solve this one. 16 days, 32 days and 48 days. So 3 days are there. This is the days of work done by ABC. Let's take the LCM. 96. LCM is 96. So 16 into 6. This is the efficiency of A. 3 and efficiency of C is 2. So 6, 3 and 2 is the efficiency of ABC. So A worked for whole time. So that means let's take the work, X is the whole time.
So 6 into x, this is the work done. 96 is the work done. So 6 into x plus b worked, we left off 8 days before. So that means b worked for 3 into x minus 8. So b ने कितनी देर काम किया? x minus 8 days. Then c worked for c 6 days before. So c left 6 days before. That means plus 2 into x minus 6. दिस होल वर्क इज इक्वल टू 96. तो इस पूरे को किसके इक्वल लिख देंगे? 96 के. आफ्टर दिस रीअरेंज, थोड़ा रीअरेंज करोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर. 12 डेज विल बी द टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज इन विच वर्क विल बी फिनिश. तो 12 दिनों में पूरा काम फिनिश हो जाएगा. ओके, यू कैन चेक इन 12 डेज द होल वर्क इज कम्प्लीटेड. थोड़ा रीअरेंज करके चेक करोगे, देन यू विल गेट द आंसर डेफिनेटली. So let's see the next question. Next question is 10 men can finish a painting wall in 8 days. तो जल्दी से देखते हैं. 10 men can finish a work in 10 men can paint a wall in 8 days. तो 10 into 8, 80 is the work done. तो ये शॉर्टकट है, अगर आपने नहीं देखे तो then you can watch the earlier videos. So 10 into 8, 80. हाउ मैनी मैन विल बी नीडेड? तो इसका और भी मेथड है, ऐसा ले लो, m इंटू डी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो 10 इंटू 8 इज इक्वल टू, आगे आपसे पूछा है इन हाउ मैनी डेज ही विल, हाउ मैनी मोर मैन विल बी नीडेड टू पेंट द वॉल इन 8 डेज. तो यहाँ पे 4 डेज. तो यहाँ पे 4 डेज, यहाँ पे ले लिया नए मैन, और नए मैन किसके इक्वल आ गए? न्यू मैन विल बी इक्वल टू 20. सो व्हेन न्यू मैन विल बी इक्वल टू 20, देखो एडिशनल कितने रिक्वायर्ड है? 10 तो ऑलरेडी हैं. दैट मीन्स 10 मोर मैन आर रिक्वायर्ड. 10 मोर मैन पूछा है ना, हाउ मैनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड. सो मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड, देन यूर आंसर विल बी 10. देखो 10 हमारे पास ऑलरेडी हैं और 10 हमें और चाहिए. तो यहाँ पे गलती नहीं करनी, 20 आंसर नहीं होगा, आंसर विल बी 10 मोर मैन आर रिक्वायर्ड. अगर वो पूछ लेता हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, सॉरी इन 4 डेज, देन यूर आंसर विल बी 20. अगर वो पूछ लेता कितने मैन 4 डेज में कंप्लीट कर लेंगे वर्क, तो आपका आंसर 20 होगा. लेकिन अगर वो पूछ रहा है हाउ मैनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड, देन यूर आंसर विल बी 20. हमें मैन चाहिए, तो दैट मीन्स 10 ऑलरेडी हैं, तो 10 हमें एक्स्ट्रा चाहिए, देन आपका आंसर आएगा 10. So I hope it is clear. Can we move to next question? Yes. So question number 5 is there, and let's start the question. A man is 4 times fast as woman. A man is 4 times fast as woman. तो man जो है वो 4 times fast है as woman. So 4 times of woman. Okay, चलो ऐसा लिख लेते हैं. अब 1 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन, यही मतलब है इसका, है ना. 1 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन. एंड वुमेन इज ट्वाइस एज बॉय. तो वुमेन की एफिशिएंसी किसके ट्वाइस है? बॉय के. दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ वुमेन इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ बॉय. ठीक है. अब पूछा क्या है? 1 मैन एंड 1 वुमेन एंड 1 वुमेन, 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय कैन वर्क टुगेदर एंड कैन कंप्लीट इट इन 6 डेज. चलो 1 वुमेन 1 बॉय एंड 1, ठीक है. हाउ मैनी डेज वुमेन विल डू इट? इन हाउ मैनी डेज वुमेन विल डू इट? तो चलो जल्दी से चेक करते हैं कैसे करेंगे. 1 मैन, तो 1 मैन को हम क्या लिख सकते हैं? पहले हम वर्क निकाल लेते हैं ना, वर्क. सो 1 मैन प्लस 1 वुमेन. 1 मैन को क्या लिख सकते हैं? 1 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन. तो हमने यहाँ पे लिख लिया 4 वुमेन. सो 4 वुमेन प्लस 1 वुमेन ऑलरेडी है हमारे पास,
हमने 1 मैन की जगह क्या पुट कर दिया, 4 वुमेन। एंड इन प्लेस ऑफ वुमेन हम वुमेन रख रहे हैं। इन प्लेस ऑफ 1 बॉय आई एम राइटिंग 2 W। 1 बॉय है ना, सो 1 बॉय, फॉर 1 बॉय आई विल राइट नहीं यहाँ पे गलती है, वेट हेयर वी हैव डन अ मिस्टेक एंड 2 बॉयज इज इक्वल टू 1 वुमेन। तो यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, वेट करना 1 मिनट बच्चे। ओके, आई एम राइटिंग इट अगेन, दोबारा चेक करना प्लीज़। 4 वुमेन इक्वल टू 1 मैन and 2 boys will be equal to 1 woman। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, शुरू से जो मेरा ट्रिक रहा है मैं कैसे करता हूँ। आई विल फाइंड द वर्क डन, ठीक है, दिस इज़ द वर्क डन। चलो मैं पहले वर्क डन लिख लेता हूँ, कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो टू फाइंड द वर्क डन मेरे पास क्या था, 1 मैन, तो मैंने मैन की जगह क्या लिख लिया, 4 वुमेन। ठीक है, 4 वुमेन। मैं सारी टर्म्स वुमेन में लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने नीचे वुमेन से डिवाइड कर देना है। मैं कैंसिल करके मेरे पास आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं, 4 वुमेन देन प्लस 4 वुमेन प्लस, अब यहाँ पे आएगा 1 वुमेन ऑलरेडी। इसके बाद मेरे पास आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पे आएगा 1 बॉय। फॉर 1 बॉय आई विल राइट हेयर 1 बॉय के लिए क्या आ जाएगा, 1/2 वुमेन, 1/2 W। और इस पूरे ऊपर वाले टर्म को अगर मैं डेज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 डेज़ के साथ, ठीक है, तो 6D। तो ऊपर देखो, ऊपर क्या है, इन द न्यूमिनेटर WD टर्म इज देयर, और नीचे के W के साथ अगर ऊपर का W कैंसिल आउट हो जाए तो डेज आ जाएंगे। ये मेरे शॉर्टकट होते हैं, ठीक है, मैं इस तरह के शॉर्टकट बेसिकली यूज़ करता हूँ। सो चलो एक बार आप लोग भी ट्राई करना, ठीक है। इस तरह के शॉर्टकट कई बार काम आ जाते हैं, जैसे ऊपर भी स्पीड है और नीचे अगर आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाती है। तो इस तरह से कई बार शॉर्टकट मैं यूज़ करता हूँ। सो लेट्स टेक द एलसीएम, 5 2 इज़ द 10 और 11/2। सो 11/2 इंटू 6D, ये आंसर आ जाएगा मेरे पास, 11/2 इंटू 6D। W विल कैंसिल आउट, और इसके बाद अगर कैंसिल करोगे देन यू विल गेट 33 एज योर आंसर। तो ये आंसर आपके पास मिल जाएगा। अगर यही मैंने मैन के लिए करना होता, सपोज इफ़ आई हैव टू फाइंड द मैन, तो अगर मैंने मैन के लिए करना होता तो मैं क्या करता, चेक करो। इफ़ आई हैव टू डू दिस क्वेश्चन फॉर मैन, देन मैं क्या करता, मेरे पास 1 वुमेन है, तो 1 वुमेन की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 1/4 मैन, 1 वुमेन इक्वल टू 1/4 एम है ना, चेक कर लेना। देन आई विल राइट, मेरे पास एक ऑलरेडी मैन है, तो 1 वुमेन की जगह मैंने 1/4 एम, देन मैन, एंड देन बॉय का कंपैरिजन करना पड़ेगा अब, ठीक है। तो उस तरह से सारा कैलकुलेट करके मैं एम से डिवाइड कर दूंगा, तो एम एंड एम विल कैंसिल आउट, और इस तरह से मैन के डेज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मेथड्स हैं जो मैं कई बार यूज़ करता हूँ। आप लोग चेक करोगे, आपके लिए होमवर्क है कि आपने मैन के डेज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आंसर यहाँ पे नहीं होगा ऑब्वियसली, शायद ना मिले आंसर। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ रेशियो ऑफ बॉयज़ इज A रेशो B रेशो C 1/3, तो A की भी एफिशिएंसी, B की एफिशिएंसी एंड C की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी रेशियो है 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। तो बच्चे एफिशिएंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो एफिशिएंसी होती है दैट एफिशिएंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। सो एफिशिएंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो दैट मीन्स जिसकी एफिशिएंसी, अब देखो यहाँ पे तो आप डायरेक्टली इन्वर्ट कर दो, ठीक है। जिसकी एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी रेशियो ऑफ 3 बॉयज़,
चलो ये तो एफिशिएंसी हो गई 1/3 1/4। इसमें सबसे कम एफिशिएंट कौन है? देखो सबसे कम एफिशिएंट है सी, दैट मीन्स सी सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। और वैसे भी अगर एफिशिएंसी रेशो गिवन हो तो इसका इन्वर्ट कर दो, ठीक है। सो इट विल बी 3 4 एंड 5। सो दिस इज़ द टाइम रेशो, ठीक है। टाइम रेशो ऑपोजिट होती है एफिशिएंसी से। जो जिसकी एफिशिएंसी कम, जैसे सी की एफिशिएंसी इस टाइम सबसे कम है 1/5, सो सी की टाइम सबसे ज़्यादा होगा। तो टाइम देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 3:4:5। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस 9th क्वेश्चन। तो इसका आंसर याद रखना कैसे आएगा, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो टाइम और एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो कितने क्वेश्चन बचे हैं, जस्ट चेक। क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव डन, क्वेश्चन नंबर 11, ओके क्वेश्चन नंबर 11 एंड देन क्वेश्चन नंबर 15। ओके क्वेश्चन नंबर 11 एंड जो 11 12 एंड 15 है दैट आर फॉर द होमवर्क। Okay, 13 and 15. So 4 question I am giving you for the homework purpose, and rest of the questions we have already discussed. Thank you so much. Take care. Bye bye.